Students, once again welcome to all of you. Students, in previous lecture we have to completed two questions of practice set 1.3. Okay student, now in this lecture we will start from question number 3. Student, in this practice set 1.3 total 7 questions are there. 2 questions are completed in previous lecture. Now in this lecture we will start from question number 3. Okay my dear student, now question number 3 is as shown in figure 1.57. Student, this is related diagram of question number 3. As shown in figure, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the height of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? Okay student, this is your question. In this question there are two poles. There are two poles and height of the poles are given. One pole is student PR, its height is 4 meter, and second pole is AC, its height is 8 meter. Student, due to sunlight, shadow of the smaller pole, student, this PR is smaller pole, its shadow is QR. It means QR represent the shadow of the PR. Okay, PR is the smaller pole, and student, AC is bigger pole, its shadow is BC, and this BC denoted by X. क्या फाइंड आउट करना? फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिगर पोल. स्टूडेंट, AC इज बिगर पोल, इट्स शैडो इज BC, तो हमको BC फाइंड आउट करना है. तो क्या इसमें गिवन है स्टूडेंट? टू पोल्स आर देयर. वन पोल इज PR, अदर पोल इज AC, दे आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ये दोनों पोल ग्राउंड पे क्या है? परपेंडिकुलर है. इट मीन्स स्टूडेंट, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. ओके माय डियर, and this QR is shadow of the smaller pole and this BC is shadow of the bigger pole. ये shadow किसकी वजह से बन रहा है? Due to sunlight. Okay my dear student, then we will first write down given. तो जब भी हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं. और गिवन में क्या लिखते हैं? जो इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसको लिखते हैं. तो इंफॉर्मेशंस आर गिवन. PR and AC are two poles. PR and AC are two poles perpendicular to the ground. Perpendicular to the ground. Okay student, perpendicular to the ground. And QR is the shadow of. QR किसका shadow है बताओ? QR is shadow of the smaller pole. QR is shadow of the smaller pole PR and BC. And student, this BC is given that X. It means BC is equal to X is the shadow of bigger pole, is the shadow of bigger pole AC. Okay my dear student, now given that this PR कितना दिया है? PR is given that 4 meter and its shadow QR is given that 6 meter and bigger pole AC is given that 8 meter and we will find BC. BC is equal to क्या दिया है? X. और हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? इस X की वैल्यू फाइंड आउट करना है. Okay my dear student, as you see in this diagram there are two triangles. One triangle is triangle PRQ and second triangle is triangle ACB. इसमें देखो दो साइड दिया है, इसका दो साइड दिया है. अगर हम लोग दोनों को सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दें, क्या प्रूफ कर दें? सिमिलर ट्रायंगल. स्टूडेंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन. तो साइड को जब प्रपोर्शन में लिखेंगे तो अननोन साइड हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. अब सवाल ये है, क्वेश्चन ए है, ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? स्टूडेंट, इन ट्रायंगल PRQ one angle is 90 degree
and in triangle ACB one angle is 90 degree. Student, in these two triangles one pair of angles are equal. दोनों का एक पेयर एंगल, एक पेयर मींस क्या, एक पेयर में कितने एंगल, दो एंगल, एक इसका 90 एक इसका 90। अगर एक एंगल और मिल जाता तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते, सिमिलर हो जाते। कौन से टेस्ट से, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके स्टूडेंट, तो यहां ध्यान से देखो, एक और एंगल इक्वल होगा। कौन सा एंगल इक्वल होगा, मैं बोल रहा हूं कि दिस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। अब इसका रीजन थोड़ा आपको समझना है। क्या आपको समझना है, ये जो शैडो बना है ना स्टूडेंट, दिस शैडो इधर कौन सा है, QR is shadow of the smaller pole and this BC is shadow of the bigger pole due to sunlight की वजह से शैडो बन रहा है। तो एक यहां पर इसको आप समझने की कोशिश करो। मान लो यहां पर हमारा सन है, यहां सन है और सन से जो रे आ रही है, कुछ इस तरह से रे आएगी और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं QR क्या है, शैडो है। अच्छा, शैडो बनेगा कहां, ग्राउंड पे ही बनेगा। तो QR एंड BC वी कंसीडर एज अ ग्राउंड। ओके स्टूडेंट, एंड वी नो दैट ग्राउंड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सन इतना ज्यादा डिस्टेंस पर होता है कि वहां से जो रे निकलती है ना, ग्राउंड पे पहुंचते पहुंचते उसको हम लोग पैरेलल कंसीडर करते हैं। ये चीज ध्यान में रखो, सन बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, वहां से जो रे निकल के आती है ग्राउंड पर पहुंचते पहुंचते हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, पैरेलल रे। ओके, तो यहां सन से देखो, यहां से रे आ रही है, ये समझो हमारा एक ग्राउंड हो गया। तो ये सारी रे कैसी हैं, पैरेलल रे है। तो इसमें दो ही कंसीडर कर लो। चलो, एक रे यहां से, एक ये रे यहां से। स्टूडेंट, दीज टू रेज आर पैरेलल and this ground consider as a transversal, and we know that if a transversal intersect two parallel lines then their corresponding angles are equal। तो बात समझ में आई क्या, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां से देखो, यहां से रे ऐसे आई, यहां से रे ऐसे आई। कंसीडर कर लो कि सन यही डायरेक्शन में बहुत ऊपर है, तो वहां से जो रे आ रही है, तो ये जो रे आ रही सन से जो रे आ रही है उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एज अ पैरेलल लाइंस, एंड दिस ग्राउंड कंसीडर एज अ ट्रांसवर्सल। सो स्टूडेंट, दिस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। ये बात समझ में आ गई। एंगल Q एंगल B के इक्वल क्यों हुआ, करिस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन रीजन में क्या लिखेंगे, दिस एंगल Q इक्वल्स टू एंगल B एंगल्स मेड बाय सनलाइट एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पर ये दोनों एंगल किसके, कौन बनाया एंगल को, बाय सन रेज एट द सेम टाइम। ओके माय डियर, नाउ वी हैव टू कंसीडर दीज टू ट्रायंगल्स। नाउ इन ट्रायंगल PRQ and triangle ACB, in these two triangles angle R is congruent to angle C। Student, this angle R is equal to angle C। Why this angle R is equal to angle C? Because of this pole PR and this pole AC आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। दोनों पोल ग्राउंड पे कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। सो स्टूडेंट, ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो यहां पे रीजन क्या लिख देंगे, ईच एंगल इज 90 डिग्री। एंड स्टूडेंट, एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। एंगल Q, दिस एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B। व्हाई दिस एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B? बिकॉज ऑफ दे मेड बाय सनलाइट एट द सेम टाइम। तो यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स मेड बाय द सनलाइट एट द सेम टाइम। ओके स्टूडेंट, एंड यू सी हियर two pairs of corresponding angles are congruent, therefore triangles are similar by which test, a test of similarity। So we will write here this triangle PRQ
इज सिमिलर टू सेकेंड ट्रायंगल ACB। और हमने एक चीज आपको बताया है, जब आप ये सिमिलर का सिंबल लिखोगे तो 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस। अच्छा, 1-to-1 करिस्पॉन्डेंस का क्या मीनिंग होता है? जो एंगल जिसके कॉन्ग्रुएंट उसी ऑर्डर पर होना चाहिए। तो एंगल R किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल C के। तो यहां देखो R कहां लिखा है? मिडल में लिखा है। यहां इसका C मिडल में है, तो ये प्रॉपर हो गया। एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल B एंड Q इज इन लास्ट एंड B इज इन लास्ट। सो स्टूडेंट 1-to-1 correspondence is correct. So write here reason by a test of similarity. इसका रीजन क्या लिखोगे? दोनों ट्रायंगल सिमिलर क्यों हो गए? बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, बिकॉज ऑफ टू पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके स्टूडेंट, नाउ वी know that if two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. In proportion it means in equal ratio. Okay student, these two triangles are similar. These two triangles are similar, therefore their corresponding sides are in proportion. So we will write here PR upon क्या? AC. Student, PR first two letter and first two letter are corresponding sides. PR its corresponding side is AC. So PR upon AC, this is equals to QR, last two letter and last two letter BC. QR upon BC। थर्ड करिस्पॉन्डिंग साइड लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों जरूरत नहीं है? हमको PQ दिया नहीं है और AB कुछ निकालना नहीं है, तो थर्ड की हमको जरूरत नहीं है। इतने से ही हम आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर रीजन क्या लिखोगे? व्हाट इज इट्स रीजन? क्या है इसका रीजन? स्टूडेंट, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसका करिस्पॉन्डिंग साइड किस में आ जाएगा? प्रोपोर्शन में। तो यहां पर रीजन क्या लिखेंगे? करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। स्टूडेंट, PR is given that 4 upon AC is given that 8, QR, student, this QR is given that 6 and BC is given that X. BC की वैल्यू क्या दिया है? X दिया है। स्टूडेंट, दिस इज 4 and this is 8. This 4 and 8 cancel out by 4. 4 1 जा 4 2 जा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? We get in left hand side 1/2. This is equal to 6 upon X. Now by cross multiplication, X into 1 कितना आ जाएगा? X. एंड दिस 6 2 जा इज 12। अच्छा, यक्स किसकी वैल्यू है? यक्स इज द वैल्यू ऑफ BC, सो वी गेट BC इज इक्वल टू 12 मीटर। अच्छा, BC है क्या? BC इज द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिगर पोल। सो we have to write the final answer, therefore length of the shadow of bigger pole is 12 meter. Okay my dear student, if you understand this solution then write down. Okay students, now next question is question number 4. In triangle ABC, student, this is related diagram of question number 4. In triangle ABC, AP is perpendicular to the side BC and this BQ is perpendicular to the side AC. B dash P dash C, student, B dash P dash C, student, it means B dash P dash C. What do you mean by B dash P dash C? Student, it means points BPC are collinear points, and student, A dash Q dash C, it means points AQC are collinear points, and collinear points, you know, points lie on the same line. Okay, and then prove that triangle CPA, then prove that, तो हेडिंग क्या आप डालेंगे? टू प्रूव मतलब क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल CPA is similar to triangle CQB.
स्टूडेंट आफ्टर प्रूविंग दीज टू ट्रायंगल्स सिमिलर देन if AP is equal to 7, BQ is 8, and BC is equal to 12, find the value of AC. Okay student, this is the question number 4. तो आइए एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। स्टूडेंट इन ट्रायंगल ABC, AP is perpendicular to BC, BPC are collinear point, BQ is perpendicular to the side AC and AQC are collinear point. Then prove that, क्या प्रूव करना है? Then prove that triangle CPA is similar to triangle CQB. अच्छा, इसमें हम लोग जरा देखते हैं, कहां देखते हैं? डायग्राम में देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल हैं किधर, कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल CPA। तो ये देखिए ट्रायंगल CPA। स्टूडेंट दिस रेड कलर ट्रायंगल विच इज इन रेड कलर इज ट्रायंगल CPA। दिख रहा है कि आपको रेड कलर का ट्रायंगल CPA is in red color and second triangle is triangle CQB। ये देखिए ट्रायंगल CQB, इसको हमने कैसे बना दिया? येलो कलर से। ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या दिया है? इफ AP is 7, BQ is 8 एंड BC is equal to 12, then find the value of AC। तो इसको तो हम लोग बाद में फाइंड आउट करेंगे। पहला काम क्या है? इसको प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो कैसे सिमिलर हैं? कौन कौन सा ट्रायंगल? CPA। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल CPA जो रेड कलर से हमने बनाया। इन ट्रायंगल CPA, सी केयरफुली, in triangle CPA, student one angle is 90 degree, this angle is 90 degree. In which triangle? Triangle CPA. In triangle CPA, one angle is 90 degree, and in triangle CQB, this angle is 90 degree. Student, one pair of corresponding angles are congruent, and now we required one more pair of corresponding angles are congruent, then we can say these two triangles are similar। मतलब दोनों का एक ट्रायंगल यहां से इक्वल दिख रहा है। इन ट्रायंगल CPA one angle is 90 and in triangle CQB this angle is 90, it means one pair of angles in both the triangles are congruent। तो हमको और क्या चाहिए? एक पेयर एंगल और चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए इन ट्रायंगल CPA एंगल C is there and this angle is also common angle in both the triangle, this angle C is also in triangle CQB। angle C is common in both the triangle, so student there are two pair of angles are congruent, therefore we can say these two triangles are similar। Okay, now write down proof in triangle CPA and triangle CQB। Okay my dear, इन ट्रायंगल CPA, अब जरा डायग्राम में देखो। इन ट्रायंगल CPA, एंगल CPA इज 90 डिग्री। एंगल CPA कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल CPA में। कौन सा एंगल? एंगल CPA मींस दिस एंगल इज 90 एंड इन ट्रायंगल CQB विच एंगल इज 90? एंगल CQB इज 90। तो रीजन क्या लिखेंगे? each angle is 90 degree and one angle C is congruent to angle C, this angle C is congruent to angle C, its reason is common angle। Okay, now you see two pairs of corresponding angles are congruent, then student these two triangles are similar, therefore triangle CPA is similar to triangle CQB। जब भी आप ये सिमिलर का सिंबल डालेंगे उसके बाद 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस चेक करना है आपको। इसमें देखो CPA में एंगल P 90 है, इसमें कौन सा एंगल 90? एंगल Q 90 है। तो एंगल P 90 एंगल Q 90 मिडल में लिखा है। एंगल C देखो फर्स्ट लेटर लिखा है। इट मींस स्टूडेंट 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस इज करेक्ट, सो राइट इट्स रीजन। अच्छा, कौन से टेस्ट से दोनों सिमिलर हो गए? बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
स्टूडेंट दिस इज टू प्रूव, यही प्रूव करना था ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। जो प्रूव्ड वाला पार्ट था वो प्रूफ हो गया। अब सेकेंड इसमें क्या दिया है, इफ AP is equal to 7, BQ is 8, BC is 12, then find AC. Student, if two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion. So student, we have to write its corresponding sides are in proportion. Now this CP, अच्छा इसमें CP तो हमको कहीं नहीं चाहिए, क्या क्या हमको चाहिए वही साइड हम लोग लिखेंगे। ये देखो AP, तो मैं क्या लिख रहा हूं इधर, AP upon its corresponding side, which corresponding side, which side is corresponding side of AP, student BQ। AP का corresponding side क्या होगा, BQ। so AP upon BQ, this is equals to AC upon क्या हो जाएगा, AC upon BC। AC its corresponding side is BC, okay। Its reason is corresponding sides of similar triangle। Student, we know that if two triangles are similar, then their corresponding sides are in proportion। थर्ड corresponding side वहां लिखने की जरूरत नहीं। ये देखो 1 2 3 4 AP BQ BC are given, we will find AC। तो ये चारों सेगमेंट वहां मिल रहे हैं। तो AP की वैल्यू क्या है, AP is 7 and BQ is 8 divide by 8 and AC। Student, we will find AC, so AC write as it is, and BC is given that 12, okay student। now by cross multiplication 8 into AC, 8 into AC, this is equal to 7 into 12, this is 7 into 12, therefore AC is equal to 7 into 12 divide by 8। Student, now see here, this is 12 and this is 8, this 12 and this 8 cancel out by 4 2 ja 4 3 ja। now we will write from here AC is equal to, student numerators are 7 into 3, 7 3 ja 21 upon 2। student, when we divide 21 by 2, then we get 10.5, डिवीजन आपको आता है। so answer is AC is equals to 10.5 units, okay my dear student। now understood, now note down this solution। now question number 5, in question number 5 student, given is already given means information about the question are directly written as given। in trapezium PQRS, student, in trapezium PQRS, this quadrilateral PQRS is a trapezium। student, do you know what is a trapezium, how to define trapezium? trapezium क्या होता है मालूम है क्या, student? a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel, then it is quadrilateral। a quadrilateral in which one pair of opposite sides are parallel, then it is a trapezium। बात समझ में आ गई क्या ट्रेपेजियम, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका one pair of opposite sides are parallel, then that quadrilateral is a trapezium। so student, this quadrilateral PQRS is given that a trapezium, and in this trapezium this side PQ is parallel to SR, one pair of opposite sides means PQ is parallel to SR। क्या दिया इसमें, PQ is parallel to SR and their diagonals PR and diagonals QS intersect to each other at point A, and other information is given that AR is given that 5 times of AP। AR कितना दिया है, 5 times of AP, and AS is given that 5 times of AQ। then prove that SR is equals to 5 times of PQ। बात समझ में आई क्या, क्वेश्चन समझ में आ गया। स्टूडेंट, दिस इज अ ट्रेपेजियम and in this trapezium this PQ is parallel to SR and their diagonals intersect to each other at point O,
and AR is given that 5 times of AP, AS is given that 5 times of AQ, then we will prove that SR is equal to 5 times of PQ. बात समझ में आई? क्वेश्चन इज क्लियर ना? नाउ स्टूडेंट, इन दिस ट्रापेजियम you see there are, we consider two triangles. Student, we have to consider two triangles. अच्छा स्टूडेंट, इसमें तो बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो हमको कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना? हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, दोनों को सिमिलर प्रूफ करेंगे, फिर उसका हम लोग करिस्पॉन्डिंग साइड को प्रपोर्शन में लिखेंगे. अब लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इसमें हम लोग कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें? बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, एक ट्रायंगल इधर हो गया, एक ट्रायंगल इधर हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे हैं, लेकिन हम तो दो को कंसीडर करेंगे और दो को सिमिलर प्रूफ करेंगे. अब सवाल उठता है कि कैसे मालूम पड़ेगा कौन कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है? उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, गिवन और टू प्रूफ. क्या चेक करना है? गिवन एंड टू प्रूफ. अच्छा, गिवन में कौन कौन सा सेगमेंट दिया है आपको? AR एंड AP. तो यहां जरा चेक करो, AR स्टूडेंट, दिस इज AR and AP, this segment is AP and AR, and student AS and AQ. दो और सेगमेंट दिया है, AS and AQ. Student, this segment is AS and this segment is AQ. क्या प्रूफ करना है? SR is equals to 5 times of PQ. SR is equal to 5 times of PQ. This segment is SR and this segment is PQ. तो आपको क्लियर हो गया कौन कौन सा ट्रायंगल? ये देखो, एक रेड कलर वाला ट्रायंगल और एक येलो कलर वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, और दोनों को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? सिमिलर. ओके, तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ये एंगल इसके इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंड स्टूडेंट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. Why these two angles are congruent? Because of they are alternate angles. Student, this PQ is parallel to SR, and this QS consider as a transversal. And student, we know that if a transversal intersect two parallel lines, then their alternate angles are equal. Student, as you see, this angle is equal to this angle, and this angle is equal to this angle. And if two pairs of corresponding angles are congruent, then we can say triangles are similar. Now student, consider. Okay, now next heading is proof. Consider triangle. In triangle PAQ, and triangle RAS. तो ये समझ में आए ना कि हमने ट्रायंगल कौन सा लिया? ट्रायंगल PAQ, और सेकेंड ट्रायंगल क्या कंसीडर किया? ट्रायंगल RAS कंसीडर किया. क्यों हमने ये दोनों ट्रायंगल ही क्यों कंसीडर किया, ये यहां से हमने क्लियर करके आपको बताया. समझ में आ गया? अब ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करेंगे? सिमिलर प्रूफ करेंगे. नाउ एंगल PAQ, स्टूडेंट सी इन डायग्राम, एंगल PAQ is congruent to angle RAS. दिखा क्या? डायग्राम में दिख रहा है दिस एंगल. नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल PAQ and name of this angle is angle RAS. These two angles are congruent because of vertically opposite angles. Okay student, रीजन समझ में आया? And angle, student, this angle, name of this angle is angle PQA. Angle PQA is congruent to this angle, and name of this angle is angle RSA. इसका रीजन क्या लिखेंगे? alternate angles. Okay student, if two pairs, this is one pair, this is second pair, if two pairs of corresponding angles are congruent, then triangles are similar. Therefore triangle PAQ is similar to triangle RAS. Okay student, तो बार बार मैं यहां पर बताता हूं आपको, जब भी आप ये सिंबल डालेंगे, मतलब सिमिलर आप लिखेंगे, तो 1 to 1 करिस्पॉन्डेंस आपको चेक करना है. ये देखो एंगल PQA कौन से वर्टेक्स पे बन रहा है? Q पे. किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल RSA के.
तो ए एंगल कहां बना, यस पे बना, तो क्यू और यस सेम ऑर्डर पर होना चाहिए। क्यू लास्ट में है, यस भी लास्ट में है, मतलब इसका करिस्पॉन्डेंस प्रॉपर है। एंड स्टूडेंट दिस एंगल पी ए क्यू एंड दिस एंगल आर ए एस सेम वर्टेक्स पे बन रहे हैं। कौन से वर्टेक्स पे, वर्टेक्स ए पर, तो दोनों के लिए वर्टेक्स से जो है सेम ऑर्डर पर होना चाहिए। एंगल ए देखो मिडल में है दोनों पर, इट मीन्स स्टूडेंट 1-to-1 correspondence is proper. So we have to write its reason why these two triangles are similar by a test of similarity, by a test of similarity. And after this we know that if two triangles are similar then their corresponding sides are in proportion. So student we have to write here AP upon AP का corresponding side बताओ, AR हो जाएगा, AP upon AR, this is equals to AQ its corresponding side is AS, AQ का corresponding side AS, and this is equals to PQ यहां देखो PQ, P फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर Q, PQ its corresponding side is RS लिखो, चाहे यहां पर यस आर लिख दो। अब रीजन क्या लिखेंगे, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आइए देखिए, अब गिवन में हम लोग चलते हैं। ए आर इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 टाइम्स ऑफ AP। तो यहां देखो फर्स्ट रेशियो इज AP अपान AR, AP अपान क्या लिखा है, AR, और AR की वैल्यू यहां से देखो, AR की वैल्यू क्या दिया है, 5 टाइम्स ऑफ AP। ओके स्टूडेंट, AR इज गिवन दैट 5 टाइम्स ऑफ AP, अपान में क्या लिखा है AR, एंड AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP। तो यहां पर इसकी वैल्यू हमने रख दिया 5 टाइम्स ऑफ AP। दिस इज इक्वल्स टू AQ अपॉन AS, AQ अपॉन AS। स्टूडेंट नाउ अगेन सी इन गिवन AS इज इक्वल टू गिवन दैट 5 टाइम्स ऑफ AP। तो AS को रिप्लेस करेंगे, AS की जगह पर क्या लिख देंगे, 5 टाइम्स ऑफ AQ, 5 टाइम्स ऑफ AQ। स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू PQ अपॉन SR, PQ अपॉन क्या, SR। अब यहां ध्यान से देखो, दिस AP इज कैंसल आउट बाई AP, तो कितना बचा यहां पर, 5 नहीं बचा, 5 तो डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 1/5। अगेन AQ इज कैंसल आउट बाई AQ, न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1/5। दिस इज इक्वल्स टू PQ अपॉन SR। ओके स्टूडेंट, दिस PQ अपॉन SR, देयरफॉर PQ अपॉन SR, PQ अपॉन SR किसके इक्वल है, 1/5। ये 2 टाइम लिखा है, 2 टाइम्स लिखा है सेम नंबर, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, दिस PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1/5। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, SR इंटू 1। चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं SR इंटू कितना, 1, SR इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इंटू PQ, 5 इंटू PQ, SR इंटू 1 वी गेट SR, यहां से कितना मिल जाएगा, SR 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा ना, SR 5 इंटू PQ मीन्स क्या, 5 PQ। सो स्टूडेंट दिस इज द आंसर। टू प्रूव में क्या लिखा है, SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। देखो आ गया, SR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ PQ। सो वी विल राइट हियर हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, मतलब क्वेश्चन इस तरह से प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड ना स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो राइट इट्स सॉल्यूशन प्रॉपर्ली। Okay my dear student, now next question is question number 6. In trapezium ABCD, student once again a trapezium is given, trapezium ABCD. Student this is the diagram ABCD. This quadrilateral ABCD is a trapezium, and in this trapezium side AB, this side AB is parallel to side CD. Diagonals AC and BD, diagonals AC and BD intersect to each other at point O. If AB is 20, DC is 6, OB is 15, then find OD.
स्टूडेंट फर्स्ट राइट डाउन इट्स गिवन इन ट्रेपेजियम ABCD, in trapezium ABCD, side CD is parallel to side AB, its diagonal AC and BD intersect to each other. इसको आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, diagonals AC and BD intersect to each other at point O, and AB is given that 20 and DC is given that 6, OB is given that 15, then find OD. क्या फाइंड आउट करना है? OD फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, सेम जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही ये सम भी करना है. तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है. अच्छा, इसमें भी हमको दो ट्रायंगल कंसीडर करना है और दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है. उसके बाद करेस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रपोर्शन में लिखेंगे. अच्छा, कौन कौन सा ट्रायंगल हम लोग कंसीडर करेंगे? AB, साइड AB होना चाहिए तो इधर AB हो गया. DC होना चाहिए तो DC आप देख रहे हैं यहाँ पर है, दिस साइड इज DC एंड नेक्स्ट साइड इज OB. OB आप देख रहे हैं यहाँ पर है OB एंड वी विल फाइंड OD. क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? OD. तो देख रहे हैं ना कौन सा ट्रायंगल हमको मिल रहा है? ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB. ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर प्रूव करेंगे. एक एंगल तो आपको इजीली मिल जाएगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड स्टूडेंट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट एंगल. अच्छा, जरूरी नहीं कि यही आप अल्टरनेट एंगल लो, ये भी तो अल्टरनेट एंगल है. और हमको ए टेस्ट से प्रूव करने के लिए सिर्फ दो पेयर आप करेस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए. तो एक तो वर्टिकली मिल गया इजीली और दूसरा हम लोग इसको ले लेंगे. ये पेयर ले लो चाहे ये पेयर ले लो, तो ये दोनों कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है. अच्छा, इसको हम लोग पहले बताते हैं कि पहले इक्वल है. स्टूडेंट फर्स्ट वी विल राइट हियर सिंस CD is parallel to AB, CD is parallel to AB, student this information is given, and BD is as a transversal, BD is as a transversal. ओके स्टूडेंट, BD को हमने क्या ले लिया? ट्रांसवर्सल ले लिया. दिस CD is parallel to AB, this information is given, and this BD consider as a transversal. So student, this angle is equal to this angle, and name of this angle is angle CDO. हमने इसको पैरेलल लिया ना, AB is parallel to CD, इसको ट्रांसवर्सल लिया है तो नाम ऐसे लिखेंगे एंगल CDB. यहां तक लेंगे एंगल CDB इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल. नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल ABD. कौन सा एंगल? एंगल ABD. अब इसका रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स. स्टूडेंट दिस एंगल CDB, we can write this angle CDB angle CDO. सेम एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है. ध्यान से यहां देखना, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको वहां मेंशन नहीं किया है, तो आप ये जो अभी कर रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया उसमें भी आप करेंगे. स्टूडेंट दिस एंगल CDB, वी कैन राइट CDB इन प्लेस ऑफ CDB वी कैन राइट एंगल CDO. क्या यहां पर लिख देंगे? CDO. क्यों लिख देंगे? ये देखो CDB and CDO represent same angles because of student this point BOD are collinear. तो इसके लिए रीजन क्या लिख देंगे? यहां पर रीजन डालते चल रहा हूं, B-O-D. ये कोलिनियर है ना, तो चाहे एंगल का नाम CDO लिखो चाहे CDB लिखो, बाद में जब हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो वहां पर नाम क्या लिखेंगे? CDO. इसके लिए हमने इसको अभी से कन्वर्ट कर दिया. दिस इज इक्वल टू एंगल ABD. एंगल ABD देखो डायग्राम में, एंगल ABD यहां तक जा रहा है. जब हम ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो वहां पर नाम क्या लिखेंगे? एंगल ABO लिखेंगे. तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? एंगल ABO. अच्छा, इसका रीजन ABD ABO, इसका भी वही सेम रीजन B-O-D. इट मींस पॉइंट्स BOD are collinear points. Okay student, let this is equation 1. Now consider
Now consider the triangles. Now in triangle COD and triangle AOB, एंगल CDO, एंगल कौन सा एंगल CDO। अभी हमने क्या किया, ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, अब इसको सिमिलर प्रूव कर रहे हैं। इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, दिस एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO। कहां से लिखा, अरे ये देखो 1 में तो अभी प्रूव किया इसको, तो यहां पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम वन एंड स्टूडेंट वन पेयर ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स इज अल्टरनेट एंगल्स। एंगल COD, दिस एंगल COD इज इक्वल टू दिस एंगल AOB। एंगल AOB, इसका रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा एक चीज ध्यान दो, लास्ट जब ही हम लोग कौन सा सम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 किया तो हमने डायरेक्ट यहां से ट्रायंगल कंसीडर करके डायरेक्ट लिख दिया था दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल, तो उसमें आप इतना और मेंशन कर लेना। बात समझ में आ रही है ना स्टूडेंट। नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल COD इज सिमिलर टू ट्रायंगल AOB। कौन से टेस्ट से, बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। एंड स्टूडेंट यू नो दैट if triangles are similar then their corresponding sides are in proportion, so we have to write here CD, this CD अपन क्या लिख दूं, AB। CD, ये देखो CD its corresponding side is AB, CD अपन AB। एंड अच्छा क्या क्या चाहिए, ये हो गया, देखो CD हो गया और AB हो गया, बचा क्या, OB और OD बच रहा है। तो OD अपन क्या, OD लास्ट टू लेटर OD अपन क्या हो जाएगा, OB। बताओ इसका रीजन, स्टूडेंट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन, सो वी हैव टू राइट हियर करिस्पॉन्डिंग साइड्स आर similar triangles. Now substitute the values. Student, this DC means CD is given that 6 and AB is given that 20, OD, student OD, we will find OD, so we write as it is OD. OB is given that 15, this 6 and 20 cancel out by 2 3 जा 2 10 जा, अंडरस्टूड ना। 6 अपॉन 20 किससे कट जाएगा, 2 से, 2 3 जा 2 10 जा, तो कितना मिल गया, OD अपॉन, यहां से देखो कितना मिला, OD अपॉन 15, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, कितना मिल गया, 3 अपॉन 10। तो OD यहां से कैसे फाइंड आउट करोगे, OD इज इक्वल टू 3 अपॉन 10, दिस 3 अपॉन 10 एंड दिस 15 टेकन दिस साइड becomes in multiplication and you see here this is 15 and this is 10 और 15 और 10 5 से कट जाएगा, 5 3 जा 5 2 जा। तो आइए यहां देखते हैं, OD इज इक्वल टू क्या आ गया, न्यूमरेटर्स में बताइए, 3 into 3 3 जा 9 एंड इन डिनोमिनेटर 2 इज देयर, 9 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2 4 जा 8, 1 बचेगा, 2 5 जा 10। So student OD is equals to 4.5 units. Okay student, this is the answer. Now note down this solution.